ममता बनर्जी पर नंदीग्राम में हुए हमले को लेकर तृणमूल समर्थकों में गुस्से का माहौल है। आज राज्य के मंत्री और केएमसी बोर्ड के चेयरमैन फिराद हकीम के नेतृत्व में खिदिरपुर मोड़ से खिदिरपुर ट्राम डिपो तक मौन रैली निकाली गई। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में तृणमूल समर्थकों ने भाजपा के खिलाफ विरोध दर्ज किया। इस मौके पर राज्य के मंत्री फिराद हकीम ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि ममता बनर्जी को घायल करके बीजेपी ने बहुत बड़ी भूल कर दी है। ममता बनर्जी अब घायल शेरनी है और घायल शेरनी खतरनाक होती है। যাতে দুর্গাপুজো হয় এবং দ্বিতীয়ত দুর্গাপুজোকে ইন্টারন্যাশনাল মাপে নিয়ে যাওয়ার জন্য কার্নিভাল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু করেছিল। স্মৃতি ইরানি তোতা পাখি ভুলভাল যা শিখিয়ে দিচ্ছে তাই এসে বলছে। দুর্গাপুজো এই মাপে নিয়ে গেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার গৌরব দুর্গাপুজো শুধু ধার্মিক নয়, এটা একটা জাতীয় উৎসবে দুর্গাপুজো পরিণত হয়েছে। তাই যখন হাজার হাজার লাখ লাখ লোক কার্নিভাল দেখার জন্য রেড রোডে উপস্থিত হয়, স্মৃতি ইরানি জানেন না, আর সেইখানে ইন্টারন্যাশনালি কয়েক কোটি লোক তারা দুর্গাপুজো দেখেন, দুর্গাপুজোর কার্নিভাল দেখেন, এটা বাংলায় এই জায়গায় তৈরি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কে দখল করতো? কে দখল করতো? নিজেই দখল করতো, আর নিজেই বলছে বুথ দখল হয়ে গেছে। অর্থাৎ ওর নিজের কথায় যে নিজে ইলেকশনে জেতেনি, বুথ দখল করে জিতেছে শুভেন্দু, সেটা নিজের কথাতে নিজে বলছে। কিন্তু এই পোর্ট এলাকায় আমি বলতে পারি, পোর্ট এলাকায় একটা বুথও দখল হয় না। পোর্ট এলাকায় প্রত্যেক মানুষ নিজের অধিকারে ভোট দেন, আর সেখান থেকে কবি হাকিমকে রেকর্ড ভোটে নির্বাচিত করেন। ভোটের আগে যেরকম হোর্ডিং লাগে, ব্যানার লাগে, ভোটের আগে মিছিল হয়, মিটিং হয়, সেরকম ভোটের আগে নোটিশ আসে, ইডি আছে, সিবিআই আছে, এইটা ভোটের অঙ্গ। এবং এইভাবেই ভোটটাকে এখন বিজেপির বিরুদ্ধে আমরা লড়াই করতে অভ্যস্ত। যেদিন মিঠুনদা ক্যান্ডিডেট হবে আমরা ওয়েলকাম করব, কিন্তু দুঃখ বাংলার মানুষ মিঠুনদাকে ভোট দেবে না। কারণ মিঠুনদা যে দলে গেছে এটা তার ষষ্ঠ দল। মিঠুনদা একটা সময় শিবসেনা করেছেন, একটা সময় মিঠুনদা বামপন্থ অর্থাৎ সিপিএম করেছেন, একটা সময় তৃণমূল করেছেন, কখনো ভারতবর্ষে এই নেতার কাছে গিয়ে বসেছেন, ওই নেতার কাছে বসেছেন। তাই মিঠুনদা এরপরে আবার অন্য দলেও যাবেন। সুতরাং এই দলটাই শেষ দল নয়। এটা আজকে দুর্ভাগ্য যে ইলেকশন কমিশনও তার একটা অংশ পক্ষপাতিত্ব করছে। নাহলে 8 দফা ভোট হতো না, নাহলে এই যে ডিজি আর এডিজিকে সরিয়ে দিয়ে এইরকম মানে সরকারি লোকেদের মনোবল ভাঙা, তার পরবর্তীকালে মমতা ব্যানার্জির ওপরে আক্রমণ, এই সব পাঠ। এবং দুর্ভাগ্য যে বিজেপি কোনো ইনস্টিটিউশনটাকে এখন নিরপেক্ষ করেনি, সেটা সিবিআইও নয়, সেটা নির্বাচন কমিশনের, সবাইকে পক্ষপাতিত্ব করে দিয়েছে। একটা অংশ এখন পর্যন্ত আমরা যা দেখেছি, আমরা চাই ইলেকশন কমিশন নিরপেক্ষ কাজ করুক। তার কারণ গণতন্ত্রের একটা ভিত হচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কিন্তু নির্বাচন কমিশন কিছু অংশের প্রেস এবং এই এজেন্সি তারা নিরপেক্ষ থাকতে পারছে না। শুধু বাংলা নয়, এটা সারা ভারতবর্ষের এই একই কমপ্লেন। আমি এইসব নিয়ে বলবো না, কারণ ও পার্টির আমি কি করে জানি। তৃণমূল কংগ্রেসের স্ট্রাইকার খেলা হবে, তার কারণ এমনি বাঘের থেকে যে বাঘ আহত বাঘের আরও বেশি সক্রিয় হয়। তাই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে যত আঘাত করবে মমতা ব্যানার্জি আরও সক্রিয় হবে, তত বেশি আরও ঝাঁপিয়ে পড়বে। এটা জানে না বিজেপি যে এটা কোন ফাঁদে से पा दिल। संदेश है ममता बनर्जी का, द्रुत बहुत जल्द वो ठीक हो जाए, ये हम प्रार्थना करते हैं ऊपर वाला से। और वो फिर अपने जो जैसे वो बंगाल में घूमती है बंगाल की शेरनी, वो घूमे और हर आदमी बंगाल के उसको उसके सुस्त होने का इंतज़ार कर रहा है। ममता बनर्जी के लिए पूजा चल रहा है, ममता बनर्जी के लिए प्रार्थना चल रहा है।
ममता बनर्जी के लिए मस्जिद मस्जिद में दुआ चल रहा है। ममता बनर्जी जल्दी सुस्त हो जाएगी और बंगाल के भरोसा है ममता बनर्जी, वो फिर से मैदान में शुरू हो गया। खेल तो शुरू हो गया, अब गोल होगा। एक गोल खाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक गोल खाएगा। अब कितना गोल देना है, 200, 250, 200, हम लोग का लिमिट है 294, इससे ज़्यादा गोल नहीं देंगे। अब उसमें कितना गोल खाएगा ये हमारा प्लेयर ही बोले, हम यहाँ का प्लेयर हैं, यहाँ का तो गोल देंगे ही। ऐसा हर एक जगह गोल होगा। ये बंगाल के ऊपर एक ज़्यादा तरह का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहा। हमारे मनोबल, हमारे ऑफिसर लोग बंगाल के और जनता के ऊपर मनोबल तोड़ने का कोशिश कर रहा, मगर कोई परवाह नहीं। क्योंकि उनके पास जेट प्लेन है, उनके पास सीबी है, ईडी है, उनके पास दौलत है, उनके पास मसल पावर है, और हमारे पास दीदी है। पोर्ट एरिया में हमारे लीडर, हमारे गार्जियन जनाब फिराद हकीम के गाइडेंस में, उनके लीडरशिप में एक रैली खिदिरपुर मोड़ से बाबू बाजार ट्राम डिपो तक हुआ, जिसमें हमारे वार्ड के, हरी वार्ड के काउंसिलर शामिल थे। यहाँ पर छात्रों के नेता, यूथ के, मदर के, महिला के, और एक आवाज़ बीजेपी की उन दलालों को जिस तरह से नंदीग्राम में एक घिन्ना राजनीति हमारी नेत्री ममता बनर्जी के साथ किया गया, जिस तरह से भीड़ की शक्ल में आकर कुछ लोग बीजेपी के दलाल जिन्होंने हमारी नेत्री ममता बनर्जी के ऊपर हमला किया, उनको धिक्कार जनाने के लिए हमारा ये रैली किया गया। और आज पूरे पोर्ट एरिया से उनको ये बता देना चाहते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने हमेशा बदलाव का राजनीति किया है, मगर जिस तरह की आपकी राजनीति है, आने वाले वक्तों में इंचा इंचा बदला हम लेंगे। पर वो बदला 2 तारीख को जब डब्बा खुलेगा, वोट के शक्ल में बंगाल की जनता आपको दिखाएगी। अगर ये नाटक है तो बीजेपी के लोकेट चटर्जी और उनके बड़े बड़े नेता पीजी में क्या करने गए थे? पीजी में जाने के बाद उनके सचिव जाने के बाद कहते हैं मीडिया से कि हम सभी चाहते हैं कि ममता बनर्जी ठीक हो जाए, उनके पाँव में चोट लगा है और साथ ही साथ उनके सर में जो MRI हुआ है वो नॉर्मल है। ये भगवान का, ईश्वर का करम है। बंगाल की जनता दुआ कर रही है कि ममता बनर्जी ठीक हो जाए। ये वर्ड मेरा नहीं, लोकेट चटर्जी का है, ये वर्ड बीजेपी के बड़े बड़े नेता का है, जो जा रहे हैं पीजी में देखने के लिए। अगर ये नाटक है तो आप पीजी में क्यों जा रहे हैं? बंगाल की जनता बहुत होशियार है। ये यूपी और बिहार नहीं है, ये गुजरात नहीं है, ये दिल्ली नहीं है, ये बंगाल है। यहाँ अमन और शांति का माहौल है। बंगाल की जनता इसका जवाब आपको 2 तारीख को देगी। देखिए, खेला हो गई, ये तो हमारी दीदी ने बहुत पहले ही कर दिया, खेला शुरू भी हो गया है। आप देखेंगे जगह जगह पर बीजेपी के नेता सभा कर रहे हैं। सभा में 500 रुपया और बिरयानी का डब्बा देने के बावजूद उनका सभा खाली जा रहा है। और हमारे यहाँ पर एक पोर्ट एरिया में हमारे लीडर जनाब फिराद हकीम के आधा घंटा के बोलने के बाद यहाँ हज़ारों हज़ार के लोगों में भीड़ हो जा रहा है। यही तो खेला है ममता बनर्जी का। खेला शुरू हो चुका है और खेला होगा 2 तारीख को खोला होगा, जब वोट का डब्बा खुलेगा, खाली गोल होगा, खाली गोल होगा। जनता से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप किसी भी भड़काव में मत जाएं। बहुत सारे लोग हवा बना रहे हैं। हवा ये हो रहा है कि हम 200 पार लाएंगे और उनके रैली में 200 लोग जमा नहीं हो रहे हैं। तो ये चीज़ में ना जाएं। ममता बनर्जी बंगाल की शेरनी थी, है और रहेगी। आने वाले वक्तों में 294 सीट पर ममता बनर्जी खड़ी है और सिर्फ 294 सीट पर गोल होगा। बीजेपी के लोग जो है खाली गोल खाएंगे, भाग जाएंगे, वापस बीजेपी के लोग दिल्ली और यूपी चले जाएंगे। जो हुई है वो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह ताला रहमान 1-2 दिन के अंदर ही फिट हो जाएंगी और फिर बीजेपी को ये बता देंगी कि ममता बनर्जी को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकता है। जहाँ तक कि शुभेंदु अधिकारी का ताल्लुक़ है, हम समझते हैं कि वो ख्वाब गफलत में हैं और 2 मई के बाद वो खोज के नहीं मिलेंगे। मालूम है कि बीजेपी उनको सियासत छोड़वाने के लिए ही ज्वाइन करवाई थी और इसीलिए नंदीग्राम में उसको खड़ा किया है। देखिए, ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी को बहुत सारा चीज़ है जो सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे विधायक हैं जिसको पार्टी टिकट नहीं दिया है, तो इसके बारे में जो पार्टी के जो हाई कमांड लीडरान हैं उनका फैसला हम लोगों के सर आँखों पे। जो लोग बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, नेत्री चली गई। अब इसका जवाब तो वही दे सकेंगे। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बीजेपी में क्यों जा रहे हैं, वो क्यों जा रहे हैं, शुभेंदु अधिकारी क्यों गए, राजीव बनर्जी क्यों गए,
या इस तरह के और भी कुछ एमएलए हैं क्यों गए, इसका जवाब तो उन्हीं लोग दे सकेंगे। कांग्रेस कोनो दिन ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी छिलो ना কি বুঝেছে আর ও যা বলছে পুরোই মিথ্যে কথা বলছে, এরকম কিছু নেই। तक अब्बास सिद्दीकी का ताल्लुक है, हम समझते हैं कि इररिलेवेंट है बंगाल की पॉलिटिक्स में, और यहाँ डायरेक्ट फाइट तृणमूल वर्सेस बीजेपी ही है। बंगाल की जनता इनफैक्ट ये डिटरमाइंड हो चुके हैं कि तीसरी बार ममता बनर्जी को बंगाल की मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं, इसलिए कि में क्या रिजल्ट होगा? इस बार पोर्ट असेंबली में बॉबी दा अपना रिकॉर्ड खुद तोड़ेंगे और 50,000 से लीड होगा। पे जो मतलब हमला हुआ ये ठीक नहीं हुआ, ये सारा भारत वर्ष के नाम में एक धब्बा है। हम सारा भारत बस में, मेरा बंगाल में हम लोग की ममता बनर्जी चाहिए, पूरा भारत वर्ष में वैसा मतलब लेडी वैसे मतलब इंसान नहीं होगा जो जात पात में राजनीति नहीं करती है। हम लोग उनसे दिल से चाहते हैं, हम लोग नहीं पर पूरा बंगाल पूरा हिंदुस्तान उनको चाहते हैं, बच्चे बच्चे चाहते हैं उनको, हर छोटे छोटे बच्चे के मुंह में है कि अब आए तो ममता बनर्जी आए। ममता बनर्जी है, कुछ भी कर ले कुछ होने वाला नहीं है। वो खेल जो बढ़ाई है हम लोग सब मिलकर उनके साथ देंगे और हम लोग भी खेलेंगे, अब खुल के खेलेंगे, हम लोग भी डरते नहीं हैं। हमारे नेत्री सुश्री ममता बनर्जी को जिन्होंने आघात किया है और मारने की कोशिश की है, बीजेपी की ये साजिश है, हर जगह ये यही काम करता है, मगर वो पश्चिम बंगाल में 1 इंची भी उन्हें जगह नहीं मिलेगा। ये सोच लीजिए आने वाले दिन में ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेगी, चाहे उसे घायल कर दो। इससे पहले भी उन्हें बहुत घायल पहुंचाया गया है और सीपीएम के अमल में भी उन्हें बहुत मारा गया है, उनके जिस्म में बहुत चोट है। उन्हें मारकर उन्हें डराकर आप राजनीति नहीं कर सकते। आपको राजनीति के मैदान में राजनीति से उतरना पड़ेगा। आपने क्या किया सारे हिंदुस्तान में, आपको जवाब देना पड़ेगा। ना आपने 15 लाख रुपया दिया, ना ही आपने जीएसटी के नाम में गब्बर सिंह टैक्स लगा दिए। आपने पूरे हिंदुस्तान को लॉकडाउन करके और पीछे ठेल दिया। आपने हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगा दी आपस में। आप काम के माध्यम से सामने आइए, आपको काम बताएगा आपके कितने काबिल आप है। आप हिंदू मुस्लिम करके और राम मंदिर बाबरी मस्जिद करके कब तक ये रोटी सेकेगा? बंगाल के हिंदू, बंगाल के बंगाली, बंगाल के मुसलमान, बंगाल के सिख ईसाई, ये आपको बंगाल के सरजमी पे पांव रखने ही नहीं देगा। आने वाले दिन में ममता बनर्जी फिर से सीएम बनेगी और हमारे नेता बॉबी हकीम फिर से वापस आएगा।